جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا. شوقین، وجارت، وضاحت اور شین خاتون، یہ بچے مجھے ابھی تک دکھائی دیے ہیں. ایک بار کنفرم کر دیجیے گا آپ لوگ. آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے. شوقین اور شان خاتون نے جواب دے دیا، تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے کلاس کو شروع کریں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جب ہم لوگ اگلی کلاس میں بات کریں گے تو ہم لوگ بات کریں گے نظم کے حوالے سے. ٹھیک ہے کہ نظم کیا ہوتی ہے، نظم کی کیا کیا اقسام ہے، نظم کتنے طرح کی ہوتی ہے، نظم کی ابتدا کیسے ہوئی، نظم کا آغاز کیسے ہوا. ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. پہلے جانتے ہیں کہ نظم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. نظم ایسے اشعار کا مجموعہ ہے. نظم ایسے اشعار کا مجموعہ ہے جس میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے. ایسے اشعار کا مجموعہ ہے جس میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے. تسلسل سے مطلب ہوتا ہے لگاتار، یعنی کہ اس میں کسی طرح کا کوئی بیچ میں بریک نہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی روکھا پن یا رکاوٹ نہ ہو. بالکل ایک پوری طریقے سے ایک ہی موضوع، آپ اسے کہہ سکتے ہیں موضوع ہونا چاہیے. جیسے ایک نظم ہے، آپ نے سنا ہوگا، جس کا نام ہے مسدس حالی. ٹھیک. کب لکھی گئی؟ 1879 میں لکھی گئی. جس کا دوسرا نام ہے مد و جد اسلام. تو اگر جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس کا جو موضوع ہے یا اس کا جو تسلسل ہے یا وہ رابطہ ہے وہ ایک ہی ہے. مسدس حالی کا موضوع ایک ہی ہے. کوئی بتا سکتا ہے مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ اگر نہیں پتا تو این لکھ سکتے ہیں، گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے اگر نہیں بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پتا چل جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کتنے پانی میں ہیں. تو یاد رکھ لینا، مسدس حالی کا جو موضوع ہے وہ ہے تاریخ اسلام. تو آپ اس میں کوئی سا بھی اشعار دیکھ لینا، اس میں جو ہے وہ آپ کو صرف تاریخ کے اور اسلام کے بارے میں آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ ہم نے نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے روٹی، یا جس کا نام ہے بنجارہ نامہ. تو روٹی کی بات کی گئی ہے پوری نظم میں. بنجارہ نامے میں آدمی کے ساتھ یا انسان کے ساتھ جو چیزیں پیش آتی ہیں اس کو پس منظر یا اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ اس نظم کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. اور سب کا جو سیم موضوع ہے، یعنی کہ جو پہلے اشعار میں موضوع ہے وہی بالکل لاسٹ والے میں بھی ہوتا ہے. تو نظم کا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایسے اشعار کا مجموعہ جو کسی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرے، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں. اب یہ جو نظم ہے، نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لڑی کے، لڑی کے، سلک کے، ترتیب کے، کسی چیز کو ترتیب دینا یا پیرونا، یا موتیوں کو دھاگے میں پیرونا، موتیوں کو دھاگے میں پیرونا. اور جو نظم کہتا ہے یا نظم کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ناظم کہتے ہیں.
नज्म अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने होते हैं लड़ी, सिल्क, तरतीब, पिरोना, मोतियों को धागे में, या कहीं कहीं आपको इसका मतलब इंतजाम भी मिलेगा, किसी चीज का इंतजाम करना। और जो नज्म कहता है उसे हम लोग कहते हैं नाज़िम। और अगर हम इसकी तारीफ बयान करें या इसकी सिनफ शायरी की खसूसियत बयान करें तो वो यही है कि ऐसे अशार का मजमुआ जो किसी खास तसलसल के साथ बयान किया जाए उसे नज्म कहते हैं। अब नज्म की जो इकसाम होती है मौजू के एतबार से, नज्म की जो इकसाम होती है मौजू के एतबार से वो अलग अलग होती है। जैसे नज़म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मसनवी भी लिख सकते हैं। नज़म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कसीदा भी लिख सकते हैं। नज़म में जो है वो हम लोग और भी दिगर चीज़ें जो है वो इसकी लिख सकते हैं, मरसिया लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम रुबाई लिख सकते हैं। ये नज़म की इकसाम है मौजू के एतबार से, मसनवी भी, कसीदा भी, मरसिया भी और रुबाई भी। आप इसमें देखेंगे शुरू से लेके आखिर तक एक ही मौजू रहेगा। मिसाल के तौर पर मसनवी है, इसका मौजू क्या हो सकता है, इश्किया हो सकता है या रज़मिया हो सकता है। कसीदा क्या हो सकता है, या तो हिजो हो सकता है या फिर वो मदाहिया हो सकता है। मरसिया का मौजू आपको पता ही है, एक ही होता है, वो होता है वाक़या करबला। रुबाई के भी अलग अलग मौजू हो सकते हैं लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक एक ही मौजू रहेगा। तो ये जो मैंने आपको सिन्फ लिखवाई है नज़म की मौजू के एतबार से है, ये सारी की सारी क्या है, नज़म है। जब आप इनकी तारीफ पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले यही मिलता है, इस नज़म को जिसमें किसी की हिजो या किसी की मदा कहें उसे कसीदा कहते हैं। इस नज़म में वाक़या करबला के बयान को बयान किया जाता है, उसे मरसिया कहते हैं। किसी इश्क व मोहब्बत की दास्तान को बयान करने के लिए हम जिस अशआर का इस्तेमाल करते हैं उस नज़म को मसनवी कहते हैं। इन सब को हम लोग नज़म ही कहते हैं। किसके एतबार से, मौजू के एतबार से। सिर्फ एक अपवाद है, ध्यान रखना, स्टार बना के लिख लेना, और वो है गज़ल। गज़ल को हम लोग नज़म नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों में जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हैं। ये इन दोनों चीज़ों में क्या है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे गज़ल लिख लेते हैं और यहाँ पे नज़म लिख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है गज़ल में और नज़म में, कि गज़ल का जो मौजू होता है वो कोई तय नहीं होता, नज़म का तय नहीं होता। गज़ल का मौजू तय होता है, ठीक है। गज़ल में जो है वो तसलसल नहीं होता, ठीक है। लेकिन नज़म में जो है वो तसलसल का होना ज़रूरी है, तसलसल होना ज़रूरी है। इसी के अलावा गज़ल का जो एक शेर होता है, गज़ल का शेर अपने आप में क्या होता है, मुकम्मल इकाई होता है। इकाई का मतलब अपनी पूरी बात कहने पर क्या होता है, कादिर होता है। जबकि नज़म में ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरी नज़म जो है वो इकाई होती है, पूरी नज़म एक इकाई होती है। यानी कि जब तक पहले मिसरे से लेके आखिर के मिसरे तक ना जाए तो मौजू हमेशा सेम ही रहता है। गज़ल में क्या होता है, इश्क व हुस्न की बात की जाती है, सिर्फ इश्क व हुस्न की बात होती है। जबकि नज़म में हर एक मौजू पे आप लोग कलम उठा सकते हैं, किसी भी मौजू पे, हर एक मौजू पे जो है वो आप लोग कलम उठा सकते हैं, ठीक है। हर एक मौजू पे जो है वो आप लोग कलम उठा सकते हैं नज़म में। चाहे आप किसी भी मौजू पे ले लें, रोटी पे ले लें, कपड़े पे ले लें, इंसान पे ले लें, त्योहार पे ले लें, गम में ले लें, खुशी में ले लें, किसी भी मौजू पे जो है वो आप लोग नज़म उठा सकते हैं या नज़म लिख सकते हैं। ये गज़ल में और नज़म में जो है वो क्या होता है, बुनियादी फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नज़म के आगाज़ की, कि नज़म का आगाज़ कहाँ से शुरू होता है। आप लोगों को पता भी होगा कि नज़म जो है वो दो एतबार में तकसीम की जाती है। पहली होती है हमारी नज़म और दूसरी होती है हमारी जदीद नज़म। जदीद नज़म और नज़म, कोई बच्चा बता सकता है आप में से
کہ جدید نظم کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جدید نظم کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ بتائیے، جدید نظم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حالی اور آزاد سے، بالکل، ویری گڈ، شاباش۔ تو یاد رکھ لینا، جدید نظم کی ابتدا ہوتی ہے 1864 میں، جب کیا ہوا تھا؟ انجمن پنجاب میں جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا، انجمن پنجاب سے۔ اور جدید نظم کی جو پہلی نظم مانی جاتی ہے، جدید نظم کی جو پہلی نظم مانی جاتی ہے وہ کون سی مانی جاتی ہے؟ جدید نظم کی جو پہلی نظم ہے وہ کون سی مانی جاتی ہے؟ تو یاد رکھ لینا، آنسر ہو جائے گا شب قدر اور الطاف حسین حالی کی برخرت، کیونکہ یہ انجمن پنجاب میں جب 1864 میں یہ نظم پڑھی گئی تھی تو انہی کو ہم لوگ جدید نظم جو ہے وہ مانتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جدید نظم کی شروعات جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور وہ کس نے کی تھی؟ وہ کی تھی اسماعیل میرٹھی نے۔ اسماعیل میرٹھی کو ہی جدید نظم کی شروعات کرنے کا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی جو ہے وہ جدید نظم کی شروعات کی، اور وہ کس لیے کی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے موضوع سے ہٹ کے نظمیں لکھنے شروع کی، اور موضوع کیا تھا ان کا؟ بچوں کے لیے۔ اور جب ہم لوگ بچوں کے لیے لکھتے ہیں تو اس کی جو زبان کا استعمال کرتے ہیں وہ بہت سہل کرتے ہیں اور بہت سادہ کرتے ہیں، اسی لیے اسماعیل میرٹھی کو ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ بچوں کا شاعر مانتے ہیں، بچوں کا شاعر مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ایک نظم جو ہے وہ ایگزام میں اکثر پوچھی جاتی ہے، کیے جاؤ کوشش، کیے جاؤ کوشش۔ این سی آر ٹی میں یہ کلاس 9th میں ان کی نظم ہے، کیے جاؤ کوشش۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور نظم بھی ہے، گائیں گائیں، تو یہ بھی جو ہے وہ ایگزام میں پوچھ لی جاتی ہے، اور یہ جدید نظم کے پیرے میں ہی آتی ہے۔ تو 1864 میں جو ہے جدید نظم کا آغاز ہوتا ہے، جب شبلی الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد۔ اچھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو مشاعرہ ہوا تھا وہ کس کے آرڈر سے یا کس کے حکم سے ہوا تھا؟ کس کے حکم سے یا کس کے آرڈر سے اس کو قائم کیا گیا تھا؟ جدید نظم کی جو ابتدا ہوئی جس مشاعرے سے ہوئی، اس میں جو ہے وہ کس کے آرڈر سے یا کس کے حکم سے کیا گیا تھا؟ نہیں پتا کسی کو؟ لکھ لینا، کرنل ہارلائڈ، کرنل ہارلائڈ، کرنل ہارلائڈ کے حکم سے اس مشاعرے کو جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حیت کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے نظم کی شکلیں یا نظم کی اقسام۔ حیت کے اعتبار سے یا حیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام کتنی ہیں؟ آپ سبھی کو پتا ہوگا، سب نے یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے پڑھ رکھی ہیں۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام بالکل کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ وہ ہے ہمارے پاس، سب سے پہلے آتا ہے پابند نظم، پابند نظم جسے ہم لوگ روایتی نظم بھی کہتے ہیں یا قدیم نظم بھی کہتے ہیں، روایتی نظم یا قدیم نظم بھی کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پابند نظم۔
इसके बाद दूसरी आती है आजाद नज्म, आजाद नज्म, ठीक है। इसके बाद तीसरी आती है हमारे पास नज्म मुअर्रा, नज्म मुअर्रा, या इसे हम लोग जानते हैं नज्म आरी के नाम से, नज्म मुअर्रा और नज्म आरा। इसके बाद फोर्थ आती है और लास्ट आती है जिसे हम लोग कहते हैं नसरी नज्म, नसरी नज्म, यानी कि ऐसी नस्र जो ऐसी नज्म जो नस्र में कही जाए, जो नस्र में कही जाए। तो ये चार इकसाम हैं हैयत के एतबार से। हैयत कहते हैं शक्ल के एतबार से, ठीक है, कि उसकी शक्ल जो है वो कैसी है। तो इसी हिसाब से पाबंद नज्म को रिवायती नज्म, कदीम नज्म कहते हैं, आज़ाद नज्म, दूसरी नज्म मुअर्रा या नज्म आरी, दोनों एक है, और चौथी जो है वो है नसरी नज्म। तो ये चार इकसाम है हमारी नज्म के हवाले से। इसके बाद बात की जाए कि उर्दू में नज्म का आगाज कब हुआ और कहाँ हुआ। उर्दू में नज्म का आगाज कब और कहाँ हुआ, कोई बच्चा बता सकता है आप में से? उर्दू में नज्म का आगाज कब और कहाँ हुआ? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उर्दू में नज्म का आगाज दक्कन में हुआ, और दक्कन में ही क्या लिखी गई है? पहली नज्म लिखी गई है, जिसको हम लोग जानते हैं चक्की नामा के नाम से। और इसके जो मुसन्निफ हैं वो हैं बंदा नवाज गेसु, बंदा नवाज गेसु दराज, बंदा नवाज गेसु दराज। तो बता सकता है ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज किस अहद के शायर हैं या किस दौर के शायर हैं? किस दौर के शायर हैं या किस अहद के शायर हैं? बंदा नवाज गेसु दराज किस दौर के या किस अहद के शायर हैं? बिल्कुल शादमा ने सही बताया है और शौकीन ने सही बताया है। ये हमारे पास हैं बहमनी दौर के, बहमनी दौर के। और कोई बता सकता है ये बहमनी दौर है ये किससे अलग होकर बना था, या किससे अपने आप को इसने स्वतंत्र या फ्रीडम के तौर पे अपने आप को अलग किया बहमनी दौर ने? या बहमनी दौर का या बहमनी सल्तनत का बादशाह कौन था, या इसका संस्थापक, इसका फाउंडर कौन था? कर्नाटक में? पागल हो गए होगा, कर्नाटक कहाँ जाएगा? सबा, महमूद अली, अमना आरिफ, शहनाज, बताइए आप लोग। बेटा हिस्ट्री भी पढ़नी है, उर्दू उर्दू से काम नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना शादी में सिर्फ बिरयानी से काम नहीं चलता, उसके साथ जर्दा भी हो, कॉफी भी हो, इस तरीके से। औरंगजेब से, औरंगजेब जो है ना वो 1700 में आया, 1707 में। हाँ, बहमनी से टूट के 5 सल्तनत बनी है। बहमनी किससे अलग होके बना है? यूसुफ आदिल शाह, बेटा वो तो बीजापुर का है, सबा। और बहमनी आप देखिए ना कि बहमनी दौर में पहली मसनवी लिखी गई है कदम राव 1400 के आसपास। तो आदिल शाह कब आ जाएगा? आदिल शाह तो 1500 में आया है। कासिम, बेटा मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में आया है, और बहमनी जो है वो मेडिवल में है, मिडाइवल में आती है। बिल्कुल शादमा ने सही बताया है, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी ये पूरा नाम है। और 1327 के आसपास जो है वो इसकी उसने बुनियाद डाली, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी या अपनी जो दारुल सल्तनत है वो दक्कन में ले गया, और फिर दक्कन से वापस लेकर आया।
तो इसी से इसका जो सेनापति था अलाउद्दीन हसन बहमनी, उसने क्या किया, उसकी बात को नकार दिया और अपने आप को यहाँ पे क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और एक नए साम्राज्य की बुनियाद डाली, जिसे हम लोग कहते हैं बहमनी, हसन गंगू, जिसे हम लोग नाम के नाम से जानते हैं। ये है पूरी हिस्ट्री, और यहीं से जो है वो बहमनी दौर की शुरुआत होती है। और ये जो जितने भी शायर थे, बंदा नवाज गैसो दराज हुआ, मीर शमसुल उशाक हुआ, और भी दिगर शोरा हुए, ये दिल्ली से गए थे। लेकिन जब बहमनी दौर ने, यानी कि हसन गंगू ने अपने आप को वहां पे स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपना जो है वो दारुल हुकूमत अलग बना लिया, तो ये लोग वहीं रुक गए और वहीं से जो है वो उर्दू की इब्तिदा जो है वो शुरू होने लगी। और इसीलिए बहमनी दौर में सबसे पहले मसनवी लिखी जाती है, जिसका नाम है कदम राव और पदम राव। कदम राव और पदम राव, ठीक है। हाँ, मीर अजय शमसुल उशाक। तो यहाँ पे जो है वो हमारे लिए नज़म की इब्तिदा होती है। लेकिन अगर हम इसके नमूने की बात करें तो नमूनों में हमें अमीर खुसरो के यहाँ पर भी नज़म देखने को मिलती है, लेकिन उनकी जो मशमूलियत है या उनकी जो मकबूलियत है वो गज़ल के हवाले से ज़्यादा है। किसके हवाले से? गज़ल के हवाले से जो है वो ज़्यादा है। तो इसकी जो शुरुआत होती है नज़म की, वो हमारी बहमनी दौर से ही होती है, क्योंकि उसमें ही हमें पहली नज़म देखने को मिली है, जिसका नाम है चक्की नामा, और मुसन्निफ है बंदा नवाज गैसो दराज। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इब्तिदा हो जाती है और फिर ये आगे चल के जो है वो नज़म के रूप में मकबूल होने लगती है। लेकिन अगर पूछा जाए बाकायदा तौर पर उर्दू का आगाज या उर्दू नज्म का आगाज कब हुआ? बाकायदा तौर पे उर्दू नज्म का आगाज कब हुआ? यहाँ तो सिर्फ शुरू हो गई, लेकिन बाकायदा तौर पे उर्दू का आगाज कब हुआ? बाकायदा तौर पे उर्दू नज्म का आगाज कब हुआ, या उर्दू नज्म का बाकायदा नज्म को कौन है? ये दोनों बातें एक है। 20वीं सदी, हाँ 20वीं सदी में कहां से हो जाएगा? 19वीं सदी में तो हमारे पास अंजुमन हिमायत इस्लाम आ गया था, 20वीं सदी कहां से आ जाएगा? यानी कि 1900 में इकबाल ही 19वें के पैदा हुए हैं 1877 में। शौकीन थोड़ा सा ध्यान लगाओ, पेपर निकालना है, कंचे नहीं खेलने हैं किताबों के साथ, तो कभी लगाना है तो ठीक लगाना है। ये तो बहुत मामूली सी बात है, इतनी बात तो हर शख्स जानता है। बिल्कुल, शहनाज ने सही जवाब दिया है, नजीर अकबर आबादी के दौर से। नजीर अकबर आबादी, और नजीर अकबर आबादी कब आते हैं? 18वीं सदी में आते हैं, क्योंकि उनकी 1740 के आसपास क्या है उनकी पैदाइश है। तो बाकायदा तौर पे जो है वो 18वीं सदी में उर्दू नज्म का आगाज होता है बाकायदा तौर पे। वो जदीद शक्ल है, वो जो आप बता रहे हैं वो जदीद शक्ल है, लेकिन वो भी 19वीं सदी में आती है। 20वीं सदी में तो कुछ मतलब ही नहीं बनता उस चीज का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नजीर अकबर आबादी को उर्दू का बाकायदा नज्म का बानी माना जाता है, या उर्दू नज्म का जो बाकायदा तौर पे आगाज होता है वो हमारा नजीर अकबर आबादी के दौर से 18वीं सदी पे होता है। यहीं पर एक सवाल पूछा जाता है कि 18वीं सदी का सबसे मशहूर शायर कौन है? 18वीं सदी का सबसे मशहूर शायर कौन है? 18वीं सदी का सबसे मशहूर शायर कौन है? शहनाज कह रही है मीर, ठीक है, और नजीर गालिब। ध्यान रखना, 18वीं सदी का जो सबसे मशहूर शायर है वो है हमारा असदुल्ला खां गालिब। असदुल्ला खां गालिब 18वीं सदी का सबसे अहम और सबसे मकबूल शायर गालिब को माना जाता है,
क्योंकि इनकी जो पैदाइश है वो हुई है 1797 में। तो ध्यान रखना, जो भी पहले की 2 डिजिट हो, सदी उससे एक जगह हमेशा आगे होती है। जैसे अभी चल रहा है 2024, लेकिन हम बात करें सदी की, तो सदी हमारी 21 चल रही है। सदी जो है वो हमारी 21 चल रही है, तो हमेशा एक आगे रहेगी। ठीक है, चलिए फिर वापस आ जाते हैं नज़म पे। तो नज़म की इकसाम, नज़म की इकसाम से मुराद हमारी पहली थी पाबंद नज़म। पाबंद नज़म जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवायती नज़म कहते हैं, या कदीम नज़म भी कहते हैं। कदीम नज़म, क्योंकि जो शुरुआत में नज़में कही गई वो इसी इकसाम के ज़ेर असर या इसी इकसाम के तहत जो है वो कही गई। जैसे पाबंद, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ की जो है वो पाबंदी जो है वो इसमें की गई होगी या कही जाती होगी। तो इसमें जो है वो पाबंदी किसकी की जाती थी, वो की जाती थी रदीफ की और काफिया की। रदीफ और काफिया की पाबंदी को हमने क्या नाम दिया है, पाबंद दिया है। यानी कि जिस नज़म में रदीफ और गालिब 19वीं सदी में नहीं आएंगे, क्या बेटा, जिस शायर जिस सदी में पैदा होता है उसका माना जाता है, जिस सदी में वो इंतकाल फरमाया गया उस सदी का नहीं माना जाता। ठीक है, तो जिस सदी में आप लोग पैदा हुए हैं आप उसके माने जाएंगे। जैसे आप लोग जो है 20वीं सदी के हैं, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर क्लास में सारे के सारे 20वीं सदी में पैदा हुए हैं, क्योंकि आपका जो DOB होगा वो 90s का होगा। और कहा जाता है कि जितनी भी अब तक की जनरेशन है, अब तक उसमें जो सबसे बेहतरीन जनरेशन है वो 90s की है। सबसे बेहतरीन जनरेशन 90s की है। क्यों? क्योंकि इसमें कदीम का और न्यू मॉडर्न का एक मिलाप है, एक मिक्सचर है। हाँ, 19वीं सदी में गालिब का इंतकाल हुआ है, लेकिन वो शायर माना जाता है 18वीं सदी का। ठीक है, चलिए फिर रदीफ और काफिया की जो है वो पाबंदी की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं पाबंद नज्म या रिवायती नज्म या कदीम नज्म। सबको पता होगा रदीफ किसे कहते हैं और काफिया किसे कहते हैं, मुझे बताने की जो है वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे रदीफ और काफिया की जिसमें पाबंदी हो उसमें हम लोग कहते हैं पाबंद नज्म या रिवायती नज्म या कदीम नज्म। इसके बाद जो दूसरी आती है जिसे हम लोग कहते हैं आज़ाद नज्म। आज़ाद नज्म ये हमारे उर्दू अदब में बाद में आई, कहाँ से, इंग्लिश लिटरेचर से या अंग्रेजी अदब से। और अंग्रेजी अदब में आज़ाद नज्म को हम लोग कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स, FREEVRSE, फ्री वर्स। फ्री से मुराद होता है कि ना तो इसमें आज़ाद वो पाबंद नज्म की तरह ना तो रदीफ होता है और ना ही काफिया होता, यानी कि जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आज़ाद नज्म कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आज़ाद नज्म कहते हैं। और जब जाहिर सी बात है जिसमें रदीफ और काफिया नहीं होंगे उसमें जो अशआर होंगे वो क्या हो सकते हैं, छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। ना रदीफ की ज़रूरत है, ना काफिया की ज़रूरत है, ना ही आपको अशआर की बहर जो एक साथ होती है उसकी ज़रूरत है। छोटे और बड़े दोनों अशआर हो सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, आज़ाद नज्म। और ये अंग्रेजी अदब से उर्दू में आया है, इसे हम लोग कहते हैं फ्री वर्स, यानी कि हर तरीके से ये क्या होती है, फ्री होती है, फ्री होती है। इसके बाद तीसरी आती है और सबसे इंपॉर्टेंट आती है जिसे हम लोग कहते हैं नज़्म मुअर्रा या नज़्म आरी। नज़्म मुअर्रा या नज़्म आरी ये भी उर्दू अदब में कहाँ से आई है, अंग्रेजी के ज़ेर असर ही आई है। अंग्रेजी के ज़ेर असर ही आई है नज़्म मुअर्रा। और हम लोग इसे बिला काफिया नज़म भी कहते हैं। इसे हम लोग बिला काफिया नज़म भी कहते हैं, नज़म भी कहते हैं। और
نظم معرہ پر سب سے پہلے جو نظر ثانی کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ نظم معرہ پر جو سب سے پہلے نظر ثانی کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ تو یاد رکھنا، نظم معرہ یا بلا قافیہ یا نظم عاری پر جو سب سے پہلے نظر ثانی کی ہے یا جس نے سب سے پہلے اس پہ جو ہے وہ غور کیا ہے وہ کیا ہے مولوی عبدالحق نے، مولوی عبدالحق نے۔ اور انہی کے مشورے پر یا انہی کے کہنے پر ہی ایک رائٹر ہوئے ہیں جن کا نام ہے عبدالحلیم شرر۔ ان کا ایک رسالہ تھا جس کا نام تھا دلغداز، دلغداز۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ دلغداز کہاں سے نکلتا تھا؟ یہ رسالہ تھا، دلغداز ایک رسالہ ہے عبدالحلیم شرر کا۔ کہاں سے نکلتا تھا اور یہ کس طرح کا رسالہ تھا؟ یاد رکھنا، یہ نکلتا تھا لکھنؤ سے، اور یہ تاریخی رسالہ تھا، یہ تاریخی رسالہ تھا۔ دلغداز لکھنؤ سے نکلتا تھا اور یہ تاریخی رسالہ تھا، اور اسی میں ہی ہمیں سب سے پہلے نظم معرہ کی تاریخ دیکھنے کو ملتی ہے۔ نظم معرہ کی پہلی تاریخ یا اس کا ذکر ہمیں اسی رسالے میں دیکھنے کو ملتا ہے، دلغداز میں۔ اور کس نے کیا تھا؟ عبدالحلیم شرر نے۔ کوئی بتا سکتا ہے عبدالحلیم شرر کو کس لیے مشہوریت حاصل ہے یا کس کی وجہ سے ان کو مشہور مانا جاتا ہے؟ بالکل، شہناز اور شبا نے صحیح جواب دیا۔ ان کو مانا جاتا ہے تاریخی ناول نگار، ٹھیک ہے، ان کو تاریخی ناول نگار مانا جاتا ہے۔ نظم معرہ کی جو سب سے خصوصیت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں جو بحر ہوتی ہے یا اس میں جو مصرے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ برابر ہوتے ہیں۔ آزاد نظم میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصرے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن نظم معرہ میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا، بلکہ بحر اور اشعار جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھ لینا، جیسے ہم نے اسے فری ورس کہا تھا آزاد نظم کو، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلینک ورس، بلینک ورس، ورس، ٹھیک، یا بلینک، BLANK کی بلینک ورس۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ردیف اور قافیے سے خالی ہوتی ہے، لیکن اس میں بحر اور مصرے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ جو اس کے ارکان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ یکساں ہوتے ہیں، اسی لیے اسے ہم لوگ کہتے ہیں بلینک ورس، ٹھیک ہے، بلینک ورس۔ نظم معرہ کو ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں مصرے اور بحر جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتی ہے۔ اب بحر کیسے برابر ہوتی ہے؟ برابر ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے والے شعر میں 6 مصرے ہیں، سوری 6 الفاظ ہیں، تو دوسرے میں بھی 6 الفاظ ہی ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ بحر کی پابندی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا بحر متقارب، بحر ہزے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیا ہیں؟ بحر ہوتی ہیں، ایک الگ الگ طریقے سے الگ الگ اصناف کے لیے جو ہے وہ الگ الگ بحر جو ہے وہ کیا ہے؟ متعین کی گئی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نظم جو ہے وہ ایک ربائی بھی ہے، ربائی کے لیے جو بحر کی گئی ہے وہ کی گئی ہے بحر حجز۔ یہ طے ہے کہ ربائی جو ہے وہ اسی صنف میں لکھی جا سکتی ہے یا اسی بحر میں لکھ سکتے ہیں۔ مثنوی کا الگ الگ ہوتا ہے، کوئی بحر متقارب ہوتا ہے، کوئی فعولن ہوتا ہے، کوئی مفاعلن ہوتا ہے، وہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ کے نصاب میں بحر ہے نہیں، ٹھیک، لیکن پھر بھی ہم لوگ 2-4 بحر جو ہے وہ پڑھ لیں گے ایگزام کے حوالے سے۔ تو یہ ہوئی ہماری نظم معرہ، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نظم عاری۔ اور جب عبدالحلیم شرر نے اسے اپنے
रिसाले में पेश किया दिलगुदाज में, तब इसे नज़्म मुअर्रा या नज़्म आरी नहीं कहा, बल्कि इसका एक नया नाम दिया गया, और वो दिया गया गैर मुकफ़ा। गैर मुकफ़ा, ठीक है, याद रखना। अब्दुल हलीम शागर ने जब अपने रिसाले में इसको पेश किया, तब इसका नाम दिया गया गैर मुकफ़ा। ना बेटा फरीदा नहीं है बहर, बहर कहीं भी नहीं है। उर्दू के किसी भी सिलेबस में बहर नहीं होती, सिर्फ याद रखनी पड़ती है। इस तरह से आप मान के चलिए, आप जब रोटी खाते हैं, रोटी खाते तो हैं, लेकिन ये याद नहीं रखते कि कितनी रोटी खाई है, बस आपने खाई है, तो बहर पढ़ा दी जाएगी, लेकिन ये तय नहीं है कि कितनी पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो इसे हम लोगों ने कहा गैर मुकफ़ा। मुकफ़ा का मतलब होता है काफिया, ऐसी नज्म जिसमें काफिया की क्या ना हो, पाबंदी ना हो, उसे हम लोग कहते हैं गैर मुकफ़ा। इसके बाद हमारी लास्ट आती है और नज्म की इकसाम में, जिसे हम लोग कहते हैं नसरी नज्म। नसरी नज्म या नसर नज्म, ये एक अलग तरह की सिनफ है जो आजकल जो है वो मशहूर है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नज्म का जो रिश्ता है, नज्म का जो रिश्ता है वो नसर से ज्यादा है, नसर से ज्यादा है। या नज्म का जो जिद है या इसका जो बद्दे मुकाबिल है वो नसर ही है, या नज्म का जो अपोजिट है वो क्या है, हमारा नसर है। आप कोई सा भी अशआर ले लो, आप कोई सा भी जो है वो टॉपिक ले लो, उसमें आपको नसर में आना ही पड़ेगा, उसमें आपको नसर में आना ही पड़ेगा। जैसे अभी ये एक शेर है, मैंने देखी है जन्नत भी जहन्नुम भी, मैंने देखी है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये दुनिया दोनों का मजमुआ है, दोनों का मजमुआ है। उर्दू में लिख देता हूँ, कभी आप लोग कहें, मैंने देखी है जन्नत भी जहन्नुम भी, मैंने देखी है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये दुनिया दोनों का मजमुआ है। ठीक है, ये क्या होगी, एक शेर हो गया। कोई बता सकता है ये शेर किसका है? मैंने देखी है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये दुनिया दोनों का मजमुआ है। कोई बता सकता है ये शेर किसका है? शबा कह रही है नहीं, फरीदा कह रही है नहीं। अच्छा, और बताइए, कोई आइडिया लगाइए किसका हो सकता है। शबा कह रही है इकबाल का है। अच्छा ठीक है, ओके। इस पे तो मैं सबके रिप्लाई चाहता हूँ। शायर खातून, अमना आरिफ, महमूद अली, वजाहत, शादुमा। सिनत तजाद है, हाँ, सनत तो इसमें तजाद है ही, इसीलिए तो बताया हूँ, जन्नत भी जहन्नुम भी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। शादमा कह रहे इकबाल। अच्छा ये बताओ, जब आपने ये शेर पढ़ा या अभी सुना, तो आपको कैसा लगा? मतलब अगर इसको अशआर के प्यार में रखा जाए, मायार इसका देखा जाए, तो कैसा था? ये नसरी नज़म का नहीं है, कभी आप लोग सोच रहे हो कि ये नसरी नज़म का है। मैं सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश की है कि नज़म का हर एक शेर अपने आप में एक नसर को रखता है। नज़म का हर एक शेर अपने आप में नसर को दबा के रखता है, क्योंकि जब हम उसकी एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमेशा नसर में ही करते हैं। चलो, अगर मैं मान के चलूं कि आपने ये शेर देखा, मैंने देखी है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये दुनिया दोनों का मजमुआ है,
یہ آپ کی نظروں میں 10 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک ایز اے ٹیچر، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ٹیچر ہیں یا بنیں گے بھی، تو مجھے بتائیے کہ آپ اس والے شعر کو اگر کوئی آپ کے بچہ سامنے لے کر آئے تو اسے آپ لوگ کتنے نمبر دیں گے آؤٹ آف 10 میں سے؟ سوچ میں پڑ گئے کہ بچوں کو پاس کیا جائے یا بچوں کو فیل کیا جائے؟ محمد شوقین کہہ رہے ہیں 8، محمود علی کہہ رہے ہیں 7۔ ہاں، کیونکہ ٹیچرز کو دیکھنا بھی ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ، کسی کے ساتھ پارشلٹی، یا کسی کے ساتھ نا اختلافی نہ ہو۔ جب آپ اسکول میں جائیں گے پڑھانے، اگر ایک بچے کو آپ نے 8 دے دیے اور سیم کوشچن کے کسی کو 7 دے دیے تو دوسرے والا بچہ جو ہے وہ لڑ جائے گا 1 نمبر کے لیے۔ بس 2 ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کو مارک کر سکتے ہیں، اس کو اینالائز کر سکتے ہیں۔ ہاں، کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ شادمہ کہہ رہی ہے 8 دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بتائیے، مطلب آپ ٹیچر بننے والے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک بچے کو جو ہے وہ اینالائز نہیں کر پا رہے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، خیر، یہ نہ تو اقبال کا ہے نہ کسی اور شاعر کا ہے، یہ ان کا ہے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ ہاں، آؤٹ آف 10 میں سے 10 دیں گے، ہاں۔ یہ 2 روز پہلے میں نے ہی لکھا ہے، میں بیٹھا ہوا تھا تو تب میرے ذہن میں یہ آیا، تو میں نے ہی لکھا ہے۔ مجھے شاعری کرنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی خالی وقت ملتا ہے تو ایسے گنگنا لیتے ہیں۔ تو بہت دن بعد یہ شعر جو ہے میری نظروں میں آیا، اور میں آپ کو پڑھانے کے لیے 9th کلاس کی گلزار اردو ایک کتاب ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ ایکسپلینیشن دیا گیا تھا اس طریقے سے۔ تو یہ یاد رکھ لینا۔ تو میں نے دیکھی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ دنیا دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ نثر کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایگزام کے حوالے سے شاعری بہت مشکل ہوتی ہے، شعر یاد نہیں رہتے ہیں۔ میرے بھی اکثر اگر کوئی غلط ہوتا ہے تو لٹریچر میں نہیں ہوتا ہے، شاعری میں ہی اکثر کوشچن جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، پریکٹس میں آتی ہیں۔ تو میں اس والی ٹاپک کو جو اشعار کی ہے، میں اسے ابھی اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوں، مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسی نہیں کہ ایک دم سے چیزیں جو ہیں وہ آپ کی مضبوط ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مصرع ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں گے اس میں نہ تو ردیف ہے نہ ہی اس میں قافیہ ہے، لیکن یہ ایک کیا ہے، یہ ایک آزاد نظم کے پیرے میں ہے، اور اس کو بتانے کے لیے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، یعنی کہ ہمیں اس کا ایکسپلینیشن کرنا ضروری ہے۔ اور کسی بھی اشعار کا ایکسپلینیشن تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں، اور ایکسپلینیشن کس میں ہو سکتا ہے، صرف ایک ہی صنف ہے جس میں آپ لوگ ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا نثر۔ کیا ہے وہ؟ نثر۔ چاہے آپ مرثیہ لے لیں، چاہے آپ مثنوی لے لیں، چاہے آپ قصیدہ لے لیں، چاہے آپ رباعی لے لیں، چاہے آپ غزل لے لیں، شاعری کی کوئی سی بھی صنف اٹھا لیں، اسے سمجھانے کے لیے آپ کو نثر میں آنا ہی پڑے گا۔ کیا ہے؟ اسے آپ کو نثر میں آنا ہی پڑے گا۔ تو اسی لیے لوگوں نے کیا کیا کہ ایک نئی صنف کو ایجاد کیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نثر۔ نظم میں اپنے آپ آٹومیٹکلی نثر انکلوڈ ہوتی ہے، وہ الگ سے نہیں ہوتی۔ اس کو بتانے کے لیے یا اس کے خلاصے کے طور پہ آپ کو نثر میں آنا ہی پڑے گا۔ اسی لیے ایک
सनत भी है, लफ व नस्र। लफ का मतलब होता है लपेटना और नस्र का मतलब होता है फैलाना। तो यानी कि कोई सा भी आप अशार लेंगे उसमें आपको जरूर नस्र जो है वो लानी ही पड़ेगी, लानी ही पड़ेगी। और इसलिए कहा भी जाता है कि नज़म से पहले नस्र का आगाज हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है वो कहानियां पहले से ही पढ़ते हैं। जैसे पापा की परी की पापा की परी कह रहा, सॉरी, परियों की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, राक्षसों की आपने कहानी पढ़ी होगी, देवी देवताओं की आपने कहानी पढ़ी होगी। तो ये क्या है, ये पहले नस्र में ही चीजें आई थी हमारे पास। अगर पापा की परी का किसी को बुरा लगाओ तो माजरत खां भाई, ठीक है, वो फ्लो फ्लो में हो गया थोड़ा सा। कभी कहें कि सर आप तो हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं पहले कह लेता हूँ। हालांकि आप लोग हैं, सब हैं अपने पापा की परी या पापा का मगरमच्छ, जो भी है जैसे भी है। तो नस्ल की जो है वो आगाज पहले हुआ है। बस ये है कि अदब में जो है वो हमारी नज़म जो है वो पहले आती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप कोई सा भी अशार लेंगे उसकी आपको तशरीह करने के लिए नस्र में आना जरूरी है। और फिर जब ये वक्त जैसे जैसे बदलता रहा तो हमारे सामने एक और आ गई नसरी नज़म, नसरी नज़म। ठीक, तो इस तरीके से ये जो नज़म है, ये जो नज़म की इकसाम है चार, वो आपके लिए जो है वो क्या है, ये चारों अहम। एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी नज्म की इकसाम बताइए। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नज्म की इकसाम है या नहीं है। नसरी नज्म, आज़ाद नज्म, पाबंद नज्म, इनका दूसरा नाम पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, और इससे ज्यादा जो है वो आपसे नहीं पूछेगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नोटिस है, बहुत खूबसूरत है और बहुत आला है नोटिस है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि पढ़ाई को मत छोड़िएगा। और पढ़ाई के सिलसिले में ही आपकी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो 1 तारीख से शुरू होंगी, 1 मार्च से। और उसकी जो आईडी है और वो है आपके लिए 4054515945। ये इंग्लिश की क्लास है, आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू होंगी। जो एपी वाले बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आपसे कोई इसका पैसा नहीं लिया जाएगा। 40545159 और 45 इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैब चलेगी, जिसमें तकरीबन 25 टॉपिक हैं आपके और 20 नंबर हैं। हिंदी की आप लोगों की चली गई है 5 बजे से, ये चलेगी सुबह में 8:45 में। ठीक है, यानी कि 8:45 से आपकी ये क्लास चलेगी 1 तारीख से। और जो मेरी क्लास होती है 8 बजे से, वो क्लास हो जाएगी 7:45 पे 1 तारीख से। क्योंकि अब जो है वो फजर की नमाज थोड़ी पहले होने लग रही है, तो इस वजह से। और ये जो सर हैं जो इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे उनका ऑफिस भी होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये। और ध्यान रखना, मैं आपको बताता चलूं, अगर आपका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है किसी तरीके से या किसी चीज को लेके, आप कोई सी भी क्लास रिकॉर्डिंग देख लेना, मैथ की आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रीजनिंग की आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, हिंदी की आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, हत्ता कि आप मेरी वाली क्लास जो उर्दू की हो रही है ये भी रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो इंग्लिश की क्लास आपकी होगी ये आपको लाइव देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस क्लास को लाइव नहीं देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, और आपकी जो पढ़ने की तरतीब है वो खसारे में चली जाएगी। अगर आप मुझसे पूछें कि कैड पे यानी कि चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर जो सबसे शानदार टीचर है, ये जो सबसे शानदार पढ़ाता है, वो इंग्लिश वाले सर हैं। जैसे मोमिन खां मोमिन ने कहा था, मोमिन खां मोमिन के कुलियात के बारे में कहा था, मेरे ख्याल से किसी ने कहा था, अभी नाम याद नहीं आ रहा, कि अगर मुझसे किसी का दीवान चुनने के लिए कहा जाए तो मैं बिलाशुबा कुलियात मोमिन चुन लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन सब क्लासों में कोई चुनने को मिले तो आप इंग्लिश वाली क्लास को बिलाशुबा चुन लीजिएगा।
اور मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इंग्लिश की क्लास खूब अच्छे से पढ़ ली तो आपके 18 नंबर कहीं नहीं गए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ट्रिपल स्टार बना के, आज तक मैंने ट्रिपल स्टार किसी पे नहीं लगाया, लेकिन इस वाली क्लास पर मैं कह सकता हूँ आप लोग अगर इंग्लिश की क्लास लाइव पढ़ेंगे, अगर आप लोग के पास टाइम की कोई कमी है या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए एटलीस्ट कर लें। मेरी क्लास भले ही आप लोग रिकॉर्ड देख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाली क्लास आप लाइव देखेंगे तो आपका 100% कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और सारा खेल जो है वो किसका है? कॉन्सेप्ट का ही है। क्योंकि मुझे पता है मैथ आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, रीजनिंग में आप अच्छे कर सकते हैं, हिंदी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है क्योंकि आपकी हिंदी शुरू से ही पढ़ रहे हैं। मसला आता है इंग्लिश में, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसीलिए इंग्लिश की क्लास को आप लोग जो है वो सीरियस ले लें थोड़ा सा, क्योंकि उर्दू तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, बीएड में, मास्टर्स में, एमए में, या और भी दिगे वहाँ पे जो है वो आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए जो है वो आप लोग इंग्लिश में जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर क्लास लेनी है। ठीक, तो ये क्लासेस जो है वो आपकी 1 तारीख से शुरू होंगी। आईडी मैंने आपको बता दी है, अगर आपको आईडी से कुछ दिक्कत आ रही तो आप लोग इस नंबर से मुझसे जो है वो आईडी ले सकते हैं। एपी वाले भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक, और इसकी फीस अलग से आपको पे नहीं करनी है। आप लोगों ने ग्राफिक कार्ड में देखा होगा 699 है, आपके लिए नहीं है वो। कोई बच्चा अगर नया जुड़ना चाहता है सिर्फ उसके लिए है, इंग्लिश के हवाले से। और मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इनकी क्लास, इंग्लिश वाले सर की क्लास सिर्फ 6 दिन ले लेंगे तो आपको अपने अंदर खुद एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वाली क्लास हमें दी। ठीक है ना? तो इसीलिए आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनकी क्लास आप लाइव देखें, तभी आप जो है वो चीज़ें समझ में आ पाएंगे। सर टेस्ट उर्दू की क्लास की टाइमिंग नहीं दे पाते तो बाद में वो पीडीएफ नहीं हो। बेटा पीडीएफ आपको ऐप के अंदर ही मिलती है, बस आपको टेस्ट देना ज़रूरी होता है। आप एक बार टेस्ट दे देंगी, वो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी, हमेशा, जब तक आप हमारे यहाँ बैच में इनरोल हैं। अब मैं ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे को अलग अलग पीडीएफ शेयर करूं, वो पीडीएफ वहीं पर रहती है। टेस्ट वाले ऑप्शन में रैंकिंग वाले पॉइंट पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, बस शर्त यह है कि आपको टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जब आपकी ये क्लास पूरी हो जाएंगी, आपके टेस्ट पूरे ये यूनिट वाइज हो जाएंगे, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलेंगी, लेकिन वो बाद में। ठीक है, आप लोग पढ़ के देखना इंग्लिश। हाँ, 1 तारीख से, रमजान से पहले पहले आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने सर जो कहा था वो बहुत बढ़िया है। अब इसकी दलील भी है कि उनसे पढ़ने के लिए आप इतने क्यों कह रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर टीजीटी पोस्ट, तो मैंने भी उन्हीं से पढ़ी है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए आप लोग भी अगर चाहते हैं अपना स्कोर अच्छा करना तो वहां से कर सकते हैं। मैंने 1 हफ्ते पढ़ी थी, सिर्फ 1 हफ्ता पढ़ी है मैंने, क्योंकि मेरा सारा फोकस रीजनिंग पे, हिंदी पे था और जीएस पे। मैथ और इंग्लिश मेरा थोड़ा सा वीक था, तो इसलिए मैंने वो पोर्शन पीछे रख रखा था। लेकिन एग्जाम के अगस्त में, सितंबर में एग्जाम था, अगस्त में मैंने पढ़ना शुरू किया था इंग्लिश। लेकिन ये है कि उस 5-6 दिन की क्लासेस में जो भी हुई वो 2-2 घंटे के लेक्चर हुए, और फिर उसके बाद मैंने क्या प्रैक्टिस की। आपको वो इंग्लिश का ए से लेकर जेड तक सारी चीजें बता देंगे। आप अगर हमें कुछ मानते हैं तो मैं आपसे दरखास्त भी कर रहा हूँ, और आपके भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही आप मेरी क्लास मिस कर दें,
میں آپ کے لیے پھر اویلیبل ہو جاؤں گا. آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ ہی پوچھ لیجیے گا, مجھ سے کال کر کے بھی پوچھ لیجیے گا, کوئی دقت نہیں ہے کہ سر اس کا آنسر نہیں آ رہا, یہ ہمیں بتا دیجیے. دیکھیے انگلش کی کلاس آپ لوگ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سارے بچے لائیو دیکھیں, سارے کے سارے. ایک دو دن مس ہو جائے اس میں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن کوشش کریں. آپ کو 2-3 دن میں ہی اس کلاس کا فرق نظر آنے لگے گا کہ ہاں کلاس میں کتنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں, خاص طور پہ اردو والے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی, کل آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں.